Hello students, how are you all? I hope that you have successfully completed your chapter number 3 and in this month we have to complete chapter 4 also and keep on revising all the topic and one of the most important quality that better be regular, be punctual. Every day we are studying chapter in a short way, so every day you have to learn all these topics. So let's have a look on the next chapter, that is chapter number 4, admission of a partner. As you know that in the introduction part in the partnership I told you that there will be 5 chapters in the partnership firm. फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था. देन इन चैप्टर नंबर 2 वी हैव डिस्कस्ड in partnership. In chapter number 2 we have discussed about change in ratio. Then third chapter in the partnership, admission. Then fourth is retirement or death, and in the fifth chapter we will close the firm, that is dissolution. So let's see about admission of a partner. Admission means, as you know, the name indicates, admission means there is a new entry of some person. Admission, a new person is coming into the partnership firm. So what are the ways that a new person is coming, why we are calling the new person, and why the new person is interested to come, and if he will come, what are the criteria and what are the treatments. All these things we will study in this chapter. So let's have a look on the learning objective. Also write down learning objectives in your notebook. In this chapter you will study about new profit sharing ratio and sacrificing ratio. This is one of the most important question, because when we will reach on the last topic, then this matters. So you have to keep an eye in since the beginning of this chapter. So in the first topic we will study how to calculate new ratio, then sacrificing, then accounting treatment of the goodwill when a new partner is admitted, then accounting treatment for revaluation of assets and liabilities, then accounting treatment of reserves and accumulated profits, and then at last adjustments of capital. So you are if you have seen the previous videos of chapter 3, you will definitely know that all the 5 topics are same. Again we are calculating sacrificing and the new ratio, again we are calculating the treatment of goodwill, and then accumulated profits and reserves, and then revaluation and adjustments of capital. Same things we have to again do in this chapter. So let's have a look. Sometimes a new partner is needed. तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वाई देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. कैसे क्या ज़रूरत आ गई कि हमें न्यू पार्टनर की ज़रूरत है. व्हेन मोर कैपिटल इज़ नीडेड, जब 2 पार्टनर के पास अमाउंट कम पड़ रहा हो, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो, तो हम एक थर्ड पर्सन को बुला लेंगे, वो कैपिटल लेकर आएगा. व्हेन ए कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज़ नीडेड, जब आपको पता है कि जिस थर्ड पर्सन को आप एंट्री करवा रहे हो वो कॉम्पिटेंट है और एक्सपीरियंस्ड है. टू इंक्रीज़ द गुडविल एंड रेपुटेशन, जब आपको ये पता है कि जिस पार्टनर को आप लेकर आ रहे हो उसके आने से आपकी बिजनेस की गुडविल अपने आप ही बढ़ जाएगी. टू एनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय, कोई एक एम्प्लॉय आपके बिजनेस में बहुत सालों से काम कर रहा था, उसको आपको एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है. तो दीज कैन बी द रीजन्स फॉर एडमिटिंग अ पार्टनर. वट आर द रीजन्स? व्हेन यू वांट मोर कैपिटल फॉर द फर्म, व्हेन यू वांट अ मोर कॉम्पिटेंट पर्सन, जब किसी न्यू पर्सन को बुलाने से आपकी गुडविल बिजनेस की एनहांस हो जाती है, और जब आप किसी कैपेबल एम्प्लॉय को अपने बिजनेस में मोटिवेट करना चाह रहे हो, एनकरेज करना चाह रहे हो पार्टनर्स बनाकर. ओके, सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. हमने 5 मोड्स पढ़े थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमलगमेशन. तो ये वन ऑफ द मोड है अंडर विच एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड. जो ओल्ड एग्रीमेंट होगा वो एंड हो जाएगा एंड अ न्यू वन कम्स इनटू फोर्स. रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वेन एवर ओल्ड एग्रीमेंट ब्रेक्स एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन. तो एडमिशन भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पुराना एग्रीमेंट ब्रेक हो रहा है. 2 पार्टनर्स थे, अब थर्ड बना रहा है, तो ओल्ड एग्रीमेंट ब्रेक हो रहा है, न्यू एग्रीमेंट एमर्ज हो रहा है. देन अ न्यू पार्टनरशिप डीड इज़ प्रिपेयर्ड. अब क्योंकि न्यू पार्टनर्स आ रहा है तो आपकी न्यू डीड बनेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एंड ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, ओल्ड डीड फिनिश हो जाएगी. सेक्शन 31 वन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एनी न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट. अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर्स आने के लिए परमिशन नहीं दे रहा है और एक चाह रहा है, अनटिल और अनलेस उनके बीच में कंसेंट नहीं होगी एज पर सेक्शन 31(1), तो आप पार्टनरशिप में नए पार्टनर को नहीं ला सकते हो. एट द टाइम ऑफ एडमिशन
द न्यू पार्टनर ब्रिंग इज शेयर, जब भी न्यू पार्टनर आएगा, अब एक बात बताइए, 2 पर्सन्स है, ऑलरेडी बिजनेस उन्होंने कर रखा था, उनका प्रॉफिट अब न्यू पार्टनर भी शेयर करेगा, उनका प्रॉफिट न्यू पार्टनर भी शेयर करेगा, तो ओल्ड पार्टनर को अपने प्रॉफिट में से शेयर उनको कुछ देना पड़ेगा। तो न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो तो गेन कर रहा है, और जो पुराने पार्टनर हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पुराने 2 पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट में से निकाल कर उनको देना पड़ रहा है। तो यानी कि ओल्ड पार्टनर विल सेक्रीफाइस एंड द न्यू पार्टनर विल गेन। अब जब वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो न्यू पार्टनर उनको कंपनसेट करेगा, तो वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर आएगा, उस एक्स्ट्रा अमाउंट का हम बोलेंगे गुडविल। गुडविल लाकर, एक्स्ट्रा अमाउंट लाकर वो बिज़नेस से पुराने पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करेगा। ओके, सो इस चैप्टर में जब हम एडमिशन करेंगे तो कौन कौन से हमें 5 टॉपिक्स करने हैं, अभी हमने इंडेक्स में भी देखा था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, असेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सो ये टॉपिक्स हमें दोबारा से रिपीट करने हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द मीनिंग of admission of a partner. Admission of a partner is one of the mode of reconstitution of the partnership under which existing agreement comes into end and a new one comes into force by admitting a new partner, and according to which section you can bring the partner into firm as per section 31(1) of the Indian Partnership Act. What are the rights which a new partner enjoys? Right to share in assets. जब वो पार्टनर बन जाएगा तो बिजनेस की प्रॉपर्टी में उसका राइट हो जाएगा एंड प्रॉफिट में भी उसका राइट हो जाएगा। देन आपको 5 इसके अंदर न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस, गुडविल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये 5 टॉपिक करने हैं। आपकी बुक में न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो को सिंगल टॉपिक में कंसिडर किया हुआ है। देन हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेज ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। क्या होता है न्यू रेशियो? हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। न्यू रेशियो में 4 तरह के सम्स होंगे जो हमें इस चैप्टर में सीखने हैं। तो न्यू रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो होता है जिसमें पुराने पार्टनर प्लस में न्यू पार्टनर फ्यूचर में किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करना चाह रहे हैं, तो उसे न्यू रेशियो बोलते हैं। 4 तरह के सम आपकी बुक में है। कैलकुलेशन ऑफ ओनली न्यू पार्टनर शेयर बीइंग गिवन। फर्स्ट केस में आपको केवल न्यू पार्टनर का शेयर मिलेगा, तो हम इसके न्यूमेरिकल्स भी अभी करेंगे। पहले थ्योरी समझ लीजिए। इफ़ द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर इज़ गिवन, केवल न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे? इन दिस सिचुएशन आफ्टर डिडक्टिंग द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करने के बाद में जो बचा हुआ होगा वो पुराने पार्टनर ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अभी हम इस सबको करेंगे। सेकंड तरह का न्यूमेरिकल है फिक्स्ड प्रपोर्शन कंट्रीब्यूशन बाय ओल्ड पार्टनर। व्हेन न्यू पार्टनर ऑब्टेन्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन सर्टेन रेशियो। आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया होगा कि ए बी पार्टनर हैं और उनका रेशियो 1:1 था, सी आ रहा है 1/5 के लिए और सी ने इनसे 1:2 में लिया है, तो इस केस में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। देन आपका आता है थर्ड केस में हम सीखेंगे इक्वल प्रपोर्शनेट। जब ए और बी पार्टनर्स दिए हुए होंगे, रेशो दोनों का इक्वल है, सी 1/5 के लिए आया है और इसने ये वाला प्रॉफिट इन दोनों से इक्वली लिया है, तो कैसे कैलकुलेट करना है। और लास्ट वाले केस में, फोर्थ केस में आपको सेक्रीफाइस दिया होगा और सेक्रीफाइस के बेसिस पर ही आपको न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना है। तो ये 4 टाइप्स के सम हम भी करेंगे। एंड व्हाट इज़ द वर्क टिल नाउ? You will prepare the notes of this chapter till here, then we will do the sums of new ratio. Have a good day.